Hello dear students, this is our another chapter, heredity. Heredity, it is mainly focuses on the Mendel's experiment on pea plant, concept of inheritance and heredity, crosses performed on pea plant, and the sex determination mechanism. So here first of all we will study about the basic information regarding this chapter. The one is the inheritance. What is inheritance? Inheritance is the प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये वो तरीका है या प्रोसेस है जिसकी हेल्प से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। सेकेंडली हेरिडिटी। Heredity is the inheritance of characters. In simple terms, we can say inheritance is the process of heredity. In this chapter, you are studying about the another branch of biology named as genetics, which is also known as the study of heredity and variations. Heredity is the transmission of characters, and transmission of characters in sexually producing organisms develops variations. And how these variations are getting expressed, in this chapter you will study about that. So here the most important name that you have to remember is the name of Sir Gregor Johann Mendel. In simple, you can say Mendel. He is known as father of genetics because he explained various laws of inheritance in pea plant by performing hybridization experiments for 7 years. Hybridization experiments, or we can say cross pollination experiments. Fine. For explaining the inheritance, he selected 7 contrasting traits in pea plant. Contrasting traits are such traits which are visible in two opposite situations. During exam, in case of NCERT या board CBSE board exam, the one thing which is usually asked is the scientific name of the pea plant. The scientific name of the pea plant is Pisum sativum. Here it is written incorrectly. It's a student notebook which I have scanned. So here it is the correct name is the Pisum sativum, Pisum, Pisum sativum. So to study various laws of inheritance, he studied 7 contrasting traits in pea plant. Those 7 contrasting traits are given here in the list. Actually, this particular flower, in case of pea plant, these are the 7 contrasting traits, and out of these 7 contrasting traits, you have to learn 4 of them. First is the height of the plant, second is the flower color, third is the seed color, and the fourth is the seed shape. These 4, at least these 4 traits should be memorized by you for exam. Let's come to the next topic, why Mendel selected pea plant. मेंडल ने पी को क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? सबसे पहली बात, ये एक क्लाइंबर है इसीलिए इसको हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं स्मॉल एरिया में. सेकेंडली, इट्स अ लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट मीन्स इसके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया है जो इसको नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कंप्लीट करेगा. तीसरा, इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है जिसकी वजह से इसकी मल्टीपल जनरेशन्स को हम स्टडी कर सकते हैं ये देखने के लिए कि हमने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए वो सक्सेस हुए या नहीं. नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल फ्लावर ये प्रोड्यूस करता है जिसमें हम मैनिपुलेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. इसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स चूज किए थे और 2 जनरेशन तक इनके इनहेरिटेंस पैटर्न को इसने स्टडी किया था. देखते हैं इसका फ्रेमवर्क. अब इसके पास जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं उन सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के इसने डेवलप किए सबसे पहले 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स. ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से स्टेबल ट्रेट कॉम्बिनेशन हर जनरेशन में शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्लांट इज टॉल, देन इफ वी आर परफॉर्मिंग such self pollination in the same flower, then we are able to develop tallness character in every of its progeny. Means whatever the seeds is produced, every will grow into a tall plant. ठीक है. Then he selected one contrasting trait, for example, tall and dwarf plant. Out of these, one plant he is going to use as male plant and the other one as a female plant. So in case of one plant, he performed emasculation. What is emasculation? Emasculation is the removal of male part before the maturation of female part, and cross pollination is performed to obtain first generation. After that, he performed self pollination in F1 plants and developed F2 generation, and all the records were maintained. So let's study about these some important terms. जो भी आपके
न्यूक्लियस के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के ही स्मॉल सेगमेंट्स को हम कहते हैं जीन। डीएनए की ही वजह से आपके कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में। इसीलिए इनहेरिटेंस पैटर्न, इनहेरिटेंस के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो रिस्पॉन्सिबल होगी दैट विल बी जीन। जीन के मल्टीपल फॉर्म्स हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं और मल्टीपल फॉर्म्स को हम कहते हैं एलील। मेंडल को नहीं पता था कि वो जीन कहलाती है, इसलिए मेंडल ने इन जीन्स को सबसे पहले कहा था फैक्टर्स। सबसे पहला इसका एक्सपेरिमेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। गलत लिखा हुआ है बच्चे ने, बट मैं जो बोल रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है जो सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के साथ में डील करता है, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट। दो डिफरेंट प्लांट लिए, इनमें से एक प्लांट को हमने इमैस्कुलेट कर दिया, मतलब इसका हमने मेल पार्ट रिमूव कर दिया, तो इसको हम कहेंगे फीमेल प्लांट, और इसके मेल पार्ट को हम यूज करने वाले हैं। दैट मीन्स इस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स हमने ट्रांसफर किए इस फ्लावर के स्टिग्मा के पास। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद पहले जनरेशन में जो हमें प्लांट्स डेवलप हुए, द फर्स्ट जनरेशन दैट वी ऑब्टेन्ड इज द F1 जनरेशन, और उसमें हमें सारे के सारे 100% टॉल प्लांट्स मिले। ठीक है, इसके बाद जब उसने टॉल प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म करवाई, मीन्स जो F1 जनरेशन में जो उसे मिले थे उनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म करवाई तो उसे 75% टॉल मिले और 25% प्लांट्स ड्वार्फ मिले। इसके बेसिस पर इसने कुछ फॉर्मुलेशंस दी थी। ऐसे कैरेक्टर्स जो पहले जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं वो सारे कहलाते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो कहलाते हैं रिसेसिव। तो हमने जो टैबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं उनमें से जो कैरेक्टर्स पहले जनरेशन में एक्सप्रेस हुए उनको हमने नाम दे दिया डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए वो हैं रिसेसिव। ठीक है, तो अब इसने टॉल पी प्लांट को, अब इनको सिंबल्स के साथ में लेना शुरू किया। जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर से वो डिनोट करता था डोमिनेंट ट्रेट्स को, और स्मॉल लेटर से डिनोट करता था रिसेसिव ट्रेट्स को। हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पेयर ऑफ फैक्टर्स, इसलिए टॉल पी प्लांट टॉलनेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पेयर ऑफ जीन्स हैं, दो कैपिटल टी। ऐसे ही ड्वार्फनेस के लिए वी आर हैविंग स्मॉल टी इन पेयर। यहाँ पर उसने परफॉर्म करवाया क्रॉस पॉलिनेशन। किसी भी इंडिविजुअल में सबसे पहले क्या होगी, गैमीट की फॉर्मेशन होगी। तो जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो जितने भी जीन्स अवेलेबल हैं वो इक्वली खुद को डिवाइड कर लेंगे, जैसे यहाँ इन्होंने किया, इक्वली सेपरेट हो गए दो डिफरेंट गैमीट्स। कोई भी गैमीट किसी भी गैमीट से फ्यूज करेगा तो आपको क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इस पे बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन में जीनोटाइप क्या मिला, तो जो मैंने सर्कल कर रखा है दिस इज द जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जो उसके जीन्स में प्रेजेंट है। फिनोटाइप मीन्स कैरेक्टर कौन सा एक्सप्रेस करेगा। ये प्लांट जब ग्रो करेगा इट विल ग्रो एज अ टॉल प्लांट, तो टॉलनेस उसका फिनोटाइप है, और ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ शो कर रखी है ये है हमारा जीनोटाइप। फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स को जब किया सेल्फ पॉलिनेशन तो हम यहाँ डेवलप करते हैं एक स्क्वायर, जहाँ पर एक तरफ हम लिख देते हैं मेल गैमीट्स को, दूसरी तरफ लिख देते हैं हम फीमेल गैमीट्स को, और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद हमें ये 4 प्रोजनी मिलते हैं। ठीक है, इन 4 प्रोजनी के बेसिस पर हम लिखते हैं एक तो फिनोटाइपिक रेशियो और एक जीनोटाइपिक रेशियो। कहीं पर भी फिर हर एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो हमेशा रहेगा 3:1 और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रहेगा 1:2:1। अगर आपसे ये याद नहीं होता है तो आप इसे रख लीजिए, कैसे भी आपको ये समझ में ऐसे नहीं आ रहा है तो इसको याद रख लीजिए, क्योंकि हर केस में आप कोई भी ट्रेट ले लेंगे आपको 3 तरह के जीनोटाइप यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक दो तो आपको पेरेंट जैसे मिलेंगे और एक आपको मिलेगा इनका मिक्सचर। बेशक यहाँ पर मिक्सचर वाला जो कैरेक्टर है ऑब्जर्व नहीं हुआ। ठीक है, जहाँ पर सेम टाइप ऑफ फैक्टर हो जाइगोट में उसे हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन, जिसमें डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हों उसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो जो हमारे डोमिनेंट ट्रेट हैं वो अपने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो हमारा रिसेसिव ट्रेट है वो केवल अपनी होमोजाइगस ट्रेट में, होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है। इसलिए एग्जाम में कई बार डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स में डिफरेंसेस लिखने के लिए आते हैं।
उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। जैसे डोमिनेंट ट्रेट्स हैं ऐसे कैरेक्टर्स जो एक्सप्रेस करते हैं फर्स्ट जनरेशन में, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते फर्स्ट जनरेशन में, वो कहलाते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट को हम हमेशा, डोमिनेंट जो है कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है दोनों ही कंडीशन में, होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस स्टेट में भी, और जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो हमेशा होमोजाइगस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर्स को हम डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से, तो जो भी कैपिटल लेटर यूज किया है उसी के स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं हमारे रिसेसिव ट्रेट्स को। ठीक है, डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होती है, फिजिकल अपीयरेंस होती है ऑर्गेनिज्म की, और जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कंपोजिशन होती है, जिसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस अभी इस समय के लिए आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं अपने डायरेक्टली सीड आपके सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म पे, जिसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, जिनमें से 44 या 22 पेयर्स कहलाते हैं ऑटोसोम्स। ये जो ऑटोसोम्स हैं हमारे बॉडी फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे सेक्स क्रोमोसोम, जो एक पेयर बच गया या 2 क्रोमोसोम बच गए, वो क्रोमोसोम्स डिफाइन करते हैं आपके सेक्स को, कि वो मेल होगा या फीमेल। ठीक है, तो जहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म का, या आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोमोसोम नंबर कैसे कांस्टेंट रहता है हर जनरेशन में, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है XX और XY मीन्स यहाँ पर जो ह्यूमन मेल्स हैं दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल और अ फीमेल चाइल्ड। ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म हमें ह्यूमंस में और फ्रूट फ्लाई में देखने को मिलता है। मेल के पास क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के पास सारे एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसीलिए जब मेल अपने गैमीट प्रोड्यूस करता है तो उसके गैमीट्स 2 तरह के बनते हैं, 50% एक्स कैरिंग क्रोमोसोम वाले बनते हैं और 50% स्पर्म्स बनते हैं वाई कैरिंग स्पर्म के साथ में, वाई कैरिंग क्रोमोसोम के साथ में। जबकि फीमेल के एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है और जो कि होता है 22 प्लस एक्स। ठीक है, अगर एक्स कैरिंग स्पर्म फ्यूज कर जाता है फीमेल ओवम के साथ तो इट विल डेवलप इनटू अ फीमेल प्रोजेनी। अगर वाई कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज कर जाता है एक्स के साथ में तो वो डेवलप करेगा मेल प्रोजेनी। यहाँ पर हमेशा चांसेस होते हैं 50% फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड गर्ल चाइल्ड। किसी भी कंडीशन में ह्यूमंस में और फ्रूट फ्लाई में ये कंडीशन चेंज नहीं होती। मेल जो है जनरली 2 तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, हाफ जो स्पर्म्स हैं इनके 50% जो स्पर्म्स हैं वो एक्स कैरिंग होते हैं और जो 50% होते हैं वाई कैरिंग होते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कई बार सेक्स डिटर्मिनेशन को डिटरमाइन करते हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जैसे टर्टल में एग्जाम्पल है, टर्टल में क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से फीमेल प्रोजेनी डेवलप होती है और लिजार्ड में हाई टेम्परेचर की वजह से मेल प्रोजेनी डेवलप होती है। अब हम आगे देख लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो आपको क्रॉस कंप्लीटली ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है, अगर ड्रॉ करना नहीं आता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन में आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रख लीजिए, पी प्लांट को क्यों चूज किया, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पी प्लांट इसमें हम फिनो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या रेशियो आती है, आपको हमेशा 100% डोमिनेंट प्लांट्स मिलेंगे और 4:0 आपका रेशियो रहेगा। जब हम सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ये हमेशा फिक्स ही रहता है, किसी में चेंज नहीं होता। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, आपके पास मान लो 2000 प्लांट्स हैं, यहाँ पे मैंने नंबर दे रखा है 1600। चलो 1600 के एग्जाम्पल लेकर ही कर लेते हैं, 6400 दे रखा, सॉरी 64 हमारे टोटल प्लांट्स हैं। तो इसमें आपको निकालने हैं पेरेंटल टाइप प्लांट्स। तो पेरेंटल टाइप प्लांट्स के लिए हम कंसिडर करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। टोटल प्लांट्स हमारे 4, इसलिए हमने लिखा है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 6400। फिर जो एक प्लांट है उसके लिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6400। ये आपके निकल गए हैं पेरेंटल टाइप प्लांट। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये कैसे हैं आपके राउंड हैं और ये वाले कैसे हैं आपके रिंकल्ड है। इसके बाद यदि आपसे बोल दे वो कि आप इंडिविजुअल काइंड ऑफ प्लांट्स निकालिए, तो इंडिविजुअल काइंड में ये कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 जो है आपके हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो इनके इंडिविजुअली आप अलग अलग निकाल दीजिए। मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा,
डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंसेस। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने क्लास में प्रैक्टिस किए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से कीजिएगा, एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू।